Hello everyone, welcome to the current affairs classes of environment and ecology. Here we will discuss about few topics, important topics like rare tropical storms near equatorial region. This is rare phenomena. जैसे कि आपने अभी देखा होगा 3 साइमल्टेनियस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए हुए हैं साउथ चाइना सी में एंड इन इंडियन ओशन. ठीक है. Thereafter we will discuss the next health crisis that India is going to face, that is indoor air pollution and its cost effective methods to deal with this indoor air pollution. ठीक है. उसके बाद में we will see about community led conservation efforts क्योंकि ये कुछ न्यूज़ में था. Thereafter about bioremediation and soil degradation. These topics are very important with respect to UPSC as well as APSC preparation, because UPSC is continuously asking regularly and year after year is asking question on these topics. Moving forward to the topic of tropical storms. ठीक है. And this is a rare phenomena. This is important because it is a rare phenomena. And why this is rare phenomena we will see, because normally cyclones don't form close to equator, है ना. But these 3 cyclones like cyclone Senyar has formed just north of the equator in Malacca Strait, around 3.8 degree north of the equator. This is a rare phenomena and this is very unique about this cyclone, because the last cyclone that has formed in this region was around 137 years back. ठीक है. तो ये rare phenomena है, इसको भी देखते हैं. Thereafter there are other tropical cyclones formed along the zone like typhoon Koto, है ना, this near the Vietnam border. ठीक है. cyclone Koto. Then a tropical cyclone that is Ditwa, it has devastated Sri Lanka. ठीक है. तो ये 3 cyclones simultaneously form हुए हैं and these are rare phenomena. Now UPSC has asked question on tropical cyclones. You can see here, like in 2020 there was a question about directly on the tropical cyclones, and in 2015 there was question why there is no cyclone formation on South Atlantic and Southeastern Pacific region. तो and this is now rare phenomena, तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. We will see before moving forward to the rare phenomena or uniqueness of these cyclones, as we saw there was 2 different names here, that is tropical cyclone and typhoon. तो ये होते क्यों हैं? Let us understand. These are the regional names of a cyclone. जो इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं उसके अलग अलग रीजनल नेम्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी नियर यूएसए दिस साइक्लोन्स आर नोन एज हरिकेन. ठीक है. वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर इन वेस्टर्न पैसिफिक दिस साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून. वेस्टर्न पैसिफिक में साउथ चाइना सी में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइफून. जैसे कि चाइना में टाइफून आता है, जापान में जब आता है तो उसको हम टाइफून बोलते हैं. ठीक है. इंडियन ओशन में एज यू ऑल नो इट इज दिस आर नोन एज साइक्लोन्स और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स. ठीक है. और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वहां पे भी साइक्लोन्स आते हैं दोनों साइड में, उसको हम बोलते हैं विली विलीज. ठीक है. दिस आर द रीजनल नेम्स ऑफ साइक्लोन. ठीक है. एंड these cyclones are named, not these cyclones, these are the regional names. now cyclones are named, है ना. जैसे कि इंडियन ओशन के साइक्लोन्स को नेम करते हैं बाय ए ग्रुप ऑफ नेशंस एंड एस्कैप. ठीक है. इंडिया का IMD टेक्स नेम फ्रॉम 13 सजेशंस फ्रॉम 13 कंट्रीज. ठीक है. टेक्स 13 सजेशंस फ्रॉम 13 कंट्रीज विच क्रिएट्स ए स्टॉक ऑफ 169 नेम्स. और इसको अल्फाबेटिकली जब जब साइक्लोन आता है उसको नेम्स दिए जाते हैं. तो दिस इज द वे टू नेम द साइक्लोन. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द रेयर फिनोमिना और द यूनिकनेस ऑफ दिस साइक्लोन सेनियार एंड दितवा एज वेल एज कोटो इज दैट दे हैव फॉर्म्ड नियर द इक्वेटर. ठीक है. अब
साइक्लोन्स फॉर्म होने में कुछ फैक्टर्स हैं. द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, फ्यू आर the sea surface temperature should be more than 26 degrees Celsius. ठीक है. Then there should be Coriolis effect. This is very important. And there should be upper air divergence. अब इस Coriolis effect के बारे में हम जानेंगे, because Coriolis effect, अब इसमें यूपीएससी क्यों फोकस करेगा, क्योंकि यूपीएससी बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन इस पे. Now the Coriolis force or effect is responsible for the cyclic characteristics of this cyclones, है ना. क्यों? Coriolis effect, it turns right anything to the right in the northern hemisphere and to the left in southern hemisphere. अब जब ये Coriolis effect नहीं होगा तो cyclones फॉर्म नहीं होंगे. This is very basic principle or the factor required for formation of cyclones. अब यहाँ पे this cyclones and the Coriolis force goes on increasing from equator to polar region. This is 0 at equator and negligible, है ना, it is negligible up to 5 degree north or south of the equator. But जो ये साइक्लोन सेनियार जो फॉर्म हुआ है, it has formed around 3.8 degree north of the equator. This is very unique. क्यों? वहाँ पे the Coriolis effect is negligible, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है. And now why? अब इसमें यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या साइक्लोन वहां पे फॉर्म होगा. यस, वहां पे भी फॉर्म होगा. देर इन इक्वेटोरियल रीजन देर साइक्लोन्स आर रेयर बट दे आर नोन टू फॉर्म इन इक्वेटोरियल रीजन्स और नियर द इक्वेटोरियल रीजन. ये जो अगर से स्टेटमेंट आएगा, सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. ठीक है. नाउ what is this linked to? Why this is happening? है ना, why this phenomena is happening? See, you can see here these three cyclones. This is cyclone Ditwa, Senyar and Koto here. ठीक है. ये simultaneously 3 cyclones form हुए and now these are directly linked to climate or climate change. The phenomena of global warming and climate change. क्यों possible हुआ ये? क्यों rare phenomena possible हुआ? Because as WMO has said, it is because of unusually high sea surface temperatures. ठीक है. जो sea surface temperatures हो रहे हैं, because of global warming there is unusually high sea surface temperature, strong moisture convergence and low pressure cells along with monsoonal wind interaction. हाँ, बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ये फिनोमिना और ये साइक्लोन जो इक्वेटोरियल रीजन में फॉर्म हो रहे हैं, दे वेर फॉर्म्ड. ठीक है. तो दिस इज अबाउट साइक्लोन्स. मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. दिस इज न्यू फिनोमिना, इट इज नॉट टोटली न्यू बट इस पे फोकस किया जा रहा है. दैट इज इंडोर एयर पोल्यूशन इन इंडिया. ठीक है. पहले देखते हैं, वी विल सी व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन. वी विल सी सम फैक्ट्स about the impacts of indoor air pollution and what are the natural remedies to deal with this indoor air pollution. ठीक है. Moving forward, what is indoor air pollution, है ना. Indoor air pollution, recently there was a news कि जो pollution जैसे कि for example नॉर्थ इंडियन बेल्ट, गैंगेटिक बेल्ट, इंडो गैंगेटिक बेल्ट में सीवियर पोल्यूशन हो रहा है रिसेंटली, है ना. वो आउटडोर पोल्यूशन है, जो हम बाहर जाते हैं. ठीक है. जो भी PM 2.5, PM 10, देन अलॉन्ग विद दैट CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, दैट इज आउटडोर पोल्यूशन. बट इंडोर, दैट इज द पोल्यूशन विच इज विद इन द 4 वॉल्स ऑफ योर रूम एंड दैट इज वेरी hazardous, is very dangerous, है ना. There are reports, recently reports were released by BITS Pilani, NIT Warangal and IIT Jodhpur. ठीक है. उन्होंने they have developed first indoor air quality index because इंडिया के जो कल्चरल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज और हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं. तो दिस इंस्टीट्यूट्स हैव कम टुगेदर टू फॉर्म दिस फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है. अब इसमें व्हाट आर दी कॉजेस और की इंडिकेटर्स ऑफ इंडोर पोल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोमास एंड फ्यूल कंबशन, उससे हमें बनता है PM 2.5, PM 210 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे बनता है. बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स यू यूज पेंट्स,
वार्निसेस, ठीक है, उससे फॉर्मल्डिहाइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि क्लीनर्स, इंसेंस, अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल्स, इससे भी क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं एंड दिस आर वेरी हजार्डस टू दी हेल्थ। और हम इस पे इंडिया में कभी इस पे ध्यान नहीं गया। नाउ दिस इज लीडिंग टू मेनी हेल्थ इश्यूज, ठीक है। उसके साथ साथ देर आर अदर की इंडिकेटर्स लाइक बायोलॉजिकल सोर्सेस। ये क्या होते हैं, मोल्ड, डस्ट माइट्स, पोलन्स। मोल्ड क्या होता है, इन मॉइस्ट एरिया, है ना, आपके रूम में अगर से मॉइस्चर ज्यादा है तो वहां पे मोल्ड फॉर्म होता है। नाउ दिस आर कॉजिंग द इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। नाउ फ्यू फैक्ट्स, नाउ हाउ दिस इंडोर एयर पोल्यूशन इज इंपैक्टिंग द हेल्थ और इकोनॉमी। लाइक इंडोर एयर पोल्यूशन कैन बी 10 times more worse than the outdoor air pollution. Can you imagine, है ना, this is 10 times more worse than the outdoor air pollution and this causes 3.5 million deaths or 4.5% of global. Delhi is ranked third risk factor in Southeast Asia, indoor air pollution, ठीक है। एंड इसका कॉजेज क्या है, बायोफ्यूल्स, एलपीजी रिड्यूस करता है। देन उसके साथ साथ इसको हम डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विथ SDG 3 एंड SDG 7, ये इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फॉर दिस यू हैव टू बाय कॉस्टली एयर प्यूरिफायर्स, नॉट वाटर प्यूरिफायर्स, एयर प्यूरिफायर, है ना, वो भी आ रहे हैं आजकल, तो वो भी बाय करना पड़ेगा। नाउ कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें हम देखते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स क्या हैं। देयर आर सम इंडोर एयर प्यूरिफाइंग और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, इंडोर प्लांट जो हम शौक से खरीद के रखते हैं, दैट प्लांट्स आर कैन हेल्प टू प्यूरिफाई आवर इंडोर पोल्यूटेड एयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू प्लांट्स लाइक अरेका पाम which removes PM particles, particulate matters, increases humidity. Snake plant, ये भी आपने सुना होगा, it absorbs CO2 at night. मनी प्लांट, ये बहुत से लोग अपने घर में लगते हैं, हालांकि ये मनी कुछ आता नहीं है बट स्टिल इसको नेम दिया गया है। इट रिमूव्स वोलेटाइल कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। उसके साथ साथ स्पाइडर प्लांट रिमूव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। पीस लिली, इट फिल्टर्स मोल्ड, ये बायोलॉजिकल जो मोल्ड्स होते हैं उसको ये रिमूव करता है, ठीक है। तो दिस आर नेचुरल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द इंडोर एयर पोल्यूशंस, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने आपको लिस्ट दिया है, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, बोस्टन फर्न है, अरेका पाम है, स्नेक प्लांट है, वेपिंग फिग है, स्नेक प्लांट, बम्बू पाम एंड पीस लिली, ठीक है। एंड विच कंपाउंड दे फिल्टर, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, यू कैन एक्सेस दी PDF, ठीक है, इसमें है। नाउ दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डील विद द इंडोर एयर पोल्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, द प्लांट्स एंड द कंपाउंड्स दैट इट इज डीलिंग विद, बिकॉज UPSC इज आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। रिसेंटली 2021 के अराउंड में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। उसी के साथ साथ एक बार डायरेक्टली पूछ लिया था कि विच आयुर्वेदिक प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग दैट सम आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा इंडोर प्लांट है जो विच कैन बी यूज टू प्यूरिफाई इंडोर एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन पूछा था, दैट सिमिलरली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस प्लांट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू a very important topic, that is bio-remediation, है ना. This technique, this is new age technique to deal with the pollution in the world. ठीक है, जैसे कि for example recently यमुना pollution in Yamuna river was in news. ठीक है, Yamuna is highly polluted region river as well as Ganga and most of the rivers, not only in India but also in the second world countries or the global south countries. वहाँ पे countries rivers क्या है, polluted है. Now this bioremediation technique is a new way or new tool to deal with this pollution. Now what is this bioremediation? Let us see what is this bioremediation, what are different types of bioremediation and what specifically they do to deal with the pollution. Moving forward,
बायोरेमिडिएशन कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्लीन द एनवायरमेंट, दैट इज सॉइल, वाटर और एयर। ठीक है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डील विद द पोल्यूशन। नाउ हाउ इट वर्क्स, आप यहां पे देख सकते हैं हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट, द कंटामिनेशन इज डिटेक्टेड, अगर से सॉइल कंटामिनेशन, ऑयल स्पिल अगर से हुआ है, ठीक है, वाटर कंटामिनेशन, दैट कंटामिनेशन इज डिटेक्टेड फर्स्ट। देन नाउ द लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड और एडेड टू स्टिमुलेट और सिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ दैट पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट that pollutant is naturally broken down by the living organisms like fungi, bacteria or plants. ठीक है, and that leads to clean environment or clean soil or water. This is about bioremediation and how it works. ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दिया गया है। इफ द प्लांट्स आर यूज्ड, दिस इज नोन एज फाइटो रेमेडिएशन। इफ द अल्गे इज यूज्ड, दिस इज नोन एज फाइको। ठीक है, इफ द बैक्टीरियाज आर यूज्ड, दिस कैन बी कॉल्ड एज बैक्टीरियल रेमेडिएशन, एंड इफ फंगाई इज यूज्ड, दिस माइक्रो रेमेडिएशन टेक्निक इज नोन एज माइक्रो रेमेडिएशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी यूज, दिस नेम्स आर गिवन। नाउ हाउ दिस, देयर आर different types of remediation. Now how these organisms are used, based on that there are two different types of remediation techniques, that is in situ and ex situ remediation techniques. ठीक है, in situ मतलब the pollutants or the degraded aspect thing is dealt in situ, that is where it is, जहां पे है वहीं पे उसको कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ सॉइल इज डिग्रेडेड और सॉइल इज पोल्यूटेड हियर, दैट सॉइल इज क्लीन्ड एट दैट प्लेस ओनली, है ना। एक्स सिटू क्या होता है, इफ दैट सॉइल इज कैरिड अवे इन सम अदर रीजन एंड ट्रीटेड, दैट इज नोन एज एक्स सिटू। ठीक है, अब उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फंगाई है, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, उसको यूज करके कर सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब उसको टेक्निक किस टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं, इन सीटू बायो रेमिडिएशंस के देखते हैं अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें बायोवेंटिंग है। अब देखो ये टाइप्स कैसे डिपेंड करते हैं। बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द पोल्यूटेंट्स। अब हमें अलग अलग टेक्निक यूज करके अलग अलग वे से उस एक्टिविटी को, जो ब्रेक करने की एक्टिविटी है माइक्रोऑर्गेनिजम्स की, उसको हमें बढ़ाना है। अब उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम, बिकॉज अब उसको ऑक्सीजन अगर से सप्लाई करेंगे, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाता है, तो उससे और ज़्यादा पोल्यूटेंट ब्रेक होंगे, तो हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जो उस बैक्टीरिया, उस फंगाई और उस अलगे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर से वो हम सप्लाई करते हैं अलग अलग वे से, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और पोल्यूशन को कम करने में वो जल्दी से हेल्प करता है। तो उस बेसिस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायो वेंटिंग। ठीक है, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। दिस इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग एयर इनटू द सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर। डायरेक्टली हम इसको बायो वेंटिंग में क्या करते हैं, हम उसमें एयर अंडरग्राउंड वाटर, सॉइल में या फिर वाटर में सप्लाई करते हैं, ताकि बायो और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ अच्छे से हो और वो कंटेमिनेशन को डील करें। नेक्स्ट इज दैट इज बायोस्पार्जिंग। इसमें भी सेम है। द डिफरेंस इज द एयर इज इंजेक्टेड एट हाई प्रेशर। ठीक है, एयर इज इंजेक्टेड एट हाई प्रेशर, तो उससे भी क्या होता है, कंटेमिनेशन को ब्रेक डाउन करने में स्पीड बढ़ जाती है। नाउ सिमिलरली देर आर अनदर टू, बायो ऑगमेंटेशन एंड बायो स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन में क्या होता है, हम स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और द अल्टर्ड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स हम क्रिएट करते हैं उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ठीक है, वो स्टिमुलेशन है। बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, बायो ऑगमेंटेशन इज
Now here we are not adding nutrients and water, here we are adding microorganisms itself. ठीक है, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पोल्यूशन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं, उसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम उसमें ऐड करते हैं. दैट इज बायो ऑगमेंटेशन. वी आर ऑगमेंटिंग द नेचुरल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स विथ लैब ग्रोन और नेचुरल ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू डील विद द पोल्यूटेंट्स. ठीक है, नाउ बायो सिमुलेशन उसको हमने अभी देख लिया. नेक्स्ट इज फाइटोरेमिडिएशन, यूज ऑफ प्लांट्स. दिस इज फाइटोरेमिडिएशन, यूज ऑफ प्लांट्स. देर आर नेचुरली ग्रोन प्लांट्स, है ना, विच ऑब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एज वेल एज सम वोलेटाइल कंपाउंड्स थ्रू देयर रूट्स एंड दे ब्रिंग टू दी देयर लीव स्टेम wherein they are degraded by phytovolatilization and phytodegradation. तो इस प्रोसेस से जो सॉइल में कंटेमिनेंट्स हैं उसको अब्जॉर्ब करके वो ब्रेक डाउन करते हैं. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन बायोरेमिडिएशन, दैट इज इन सीटू बायोरेमिडिएशन मेथड एंड प्रोसेसेस. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन अराउंड 2017 कि in the context of solving pollution problems, what are the advantages of bioremediation technology. ठीक है, बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, नेचुरल है, वगैरह वगैरह, इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ इट में आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास. ठीक है, नाउ आई सेड इन द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, दैट इज द कम्युनिटी लेड conservation efforts. What happened? This was in news that a rock eagle nest in Telangana was saved by a local community. वहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्शन रॉक को तोड़ने के लिए जा रहे थे वो लोग. ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने नेस्ट देखा, उसमें एग्स थे रॉक ओल के, तो उन्होंने उसको तोड़ा नहीं, उसको वैसे ही रहने दिया टिल इट गो बर्थ. ठीक है, तो यहाँ पे now this is only the news. You can cite this as a example. You can cite this as a example of what? This is conservation success driven by community action. ठीक है, this is मेंस में इसको यूज कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वगैरह में. जब मेंस में आप आंसर लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, कम्युनिटी को भी यूज करना चाहिए, उसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. देर आर फ्यू केसेस वेयर community is directly involved in conservation of and protection of biodiversity. Like for example, ये भी डायरेक्टली मेंस में आप एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं, और ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कौन से एनिमल को कौन सा ट्राइब प्रिजर्व कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, और कौन से नेशनल पार्क में कौन सा ट्राइब रहता है. दिस इज यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, तो हियर देर इज ए लिस्ट ऑफ ट्राइब्स, जैसे कि मुथुवन ट्राइब है ना, अन्नामला हिल्स में रहता है, नीलगिरी तहर को ये प्रोटेक्ट करने में थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, एंड दे आर प्रोवाइडिंग कंजर्वेशन सपोर्ट, इन सीटू कंजर्वेशन सपोर्ट. बिश्नोई कम्युनिटी आपने सुना होगा, राजस्थान में है, ब्लैक बक एंड चिंकारा कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन में ये हेल्प कर रहे हैं. जारावाज इन अंडमान, सोलिगाज इन कर्नाटका, दे आर हेल्पफुल इन कंजर्विंग और प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स. ठीक है, थ्रू सेक्रेड ग्रू, सस्टेनेबल हंटिंग. ठीक है, हॉनी कलेक्शन, इससे ये हेल्प करते हैं. सिमिलरली टोडाज इन नीलगिरीज, कानी इन वेस्टर्न घाट्स, भूटिया इन सिक्किम. ठीक है, एंड चेंचूज इन आंध्र प्रदेश आर हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ like different species in different national parks and protected areas across the India. ठीक है, इसको आप you can use as an example in your mains answers or this question can directly be asked in prelims. ठीक है, okay. Now जैसे कि for example this is this protection areas, protected areas come under Wildlife Protection Act of 1972 that will be discussed separately in detail because इस पे रेगुलरली इस पे क्वेश्चन आते हैं बाय यूपीएससी एंड एपीएससी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल्स ऑफ इंडिया. क्यों? नाउ व्हाई वी शुड डिस्कस दिस? बिकॉज ऑन 5th December it was World Soil Day. 5th December is celebrated as World Soil Day. Now soil is very important. It is the very foundation of ecosystems as well as
the humanity, sustainability of humanity on the earth, but it is least protected and seen after resource over the world. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हाट इज द इश्यू और द प्रॉब्लम विद द सॉइल्स इज, यू कैन सी हियर, है ना, देयर इज ए रिपोर्ट बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे विच सेज दैट 146.8 million hectares, that is around 30% of soil in India is degraded, already degraded. ठीक है, अब इसमें अलग से दिया हुआ है कि कैसे कैसे डिग्रेड हुआ है. यू कैन सी हियर, यू कैन यूज द मैप टू शो वेयर द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्रेडेड सॉइल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डिग्रेड हुआ है एंड द रेन शैडो रीजन इन डेक्कन, दैट इज ब्लैक सॉइल रीजन, यहाँ पे भी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसके रिपोर्ट नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है, सॉइल्स आर ग्लोबली डिग्रेडेड. इसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए. एट ग्लोबल लेवल अप टू 40% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड इज डिग्रेडेड. कितना? 40% ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड. इट अफेक्ट्स 50% ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, एंड दिस डिग्रेडेशन थ्रेटन्स अराउंड 44 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी अक्रॉस द ग्लोब. इट्स ह्यूज. ठीक है, उसके साथ साथ हमारे कंट्री में इट टेक्स अराउंड 1.6 trillion to deal with the soil degradation, and the main cause here listed is agriculture is responsible for 80% of global deforestation, and deforestation is the major cause of soil degradation in India as well as world. ठीक है, this is about the global data and the previous data was about India. ठीक है, इंडिया में 30% डिग्रेडेशन है, वर्ल्ड में 40% डिग्रेडेशन है. ठीक है, उसके साथ साथ let us see what are the causes or drivers of soil degradation. First one is deforestation, population growth, urban expansion, pollution and waste disposal, इसके वजह से soil contamination होता है. ठीक है, climate change, इसके वजह से कार्बन साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर डिस्टर्ब्ड, एंड अनसस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन एग्रीकल्चर वेयर देयर इज अनसस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, नाउ हाउ these practices are leading to soil degradation? By there is degradation by loss of organic carbon, by erosion, acidification, pollution, nutrient imbalance in the soil, salinization, alkalinization, desertification of soil and biodiversity loss. जो soil में microbiota है, because of loss of microbiota in soil, soils का nutrient cycle और nutrient का जो यहाँ पे imbalance create हो रहा है, उसके वजह से soil degradation हो रहा है. ठीक है, now see the consequences of soil degradation or food and nutritional insecurity, water scarcity, rapid climate change. Climate change is cause as well as effect of soil degradation. ठीक है, उसके वजह से there can be increase in poverty and social insecurity, migration and reduction of ecosystem services. The humans or the economy, somewhere it is sustained by the ecosystem services provided by ecosystem. Soil degradation leads to reduction in ecosystem services, which will hamper the health, economy as well as the biodiversity across the globe. This is about soil degradation, and the steps that are required for conservation of soil are mechanical. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेसिंग, क्रॉप रोटेशन, जो कि एग्रीकल्चर इज मेजर कॉज, उसमें हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, मल्चिंग, अग्रो फॉरेस्ट्री, जीरो टिलेज, बायोलॉजिकल मेजर्स लाइक प्लांटिंग ग्रासेस एंड ट्रीज. ठीक है, आप इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसका भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है, एंड बेसिकली क्रॉप रोटेशन, उसके साथ साथ अक्रो ecological cropping pattern we should follow. Cropping pattern should be followed. ठीक है, उसके there are multiple benefits by doing this. We can reduce the erosion, enhance soil fertility, increases water retention, support biodiversity and ensures food security. ठीक है, these are the major
benefits we can derive by following these methods for soil conservation. ठीक है, there are multiple government initiatives like soil health card to know the nutrient balance of the soil. उसके साथ साथ we have this integrated watershed management program which oversees the integrated management of water resources as well as soil resources, biodiversity and maintaining the greenery across the watershed region. Then we have this National Mission for Sustainable Agriculture and Paramparagat Krishi Vikas Yojana, where we are using traditional methods to conserve and upgrade the soils. So this is about the soils and soil degradation across India. ठीक है, these topics are important for both prelims and mains. Thank you.